अगर तुम्हारी डेडलिफ्ट फास्ट उठती है फ्रॉम द ग्राउंड बट गेट स्लोज डाउन अराउंड योर थाइज, देन माय फ्रेंड you don't lack strength. What you lack is weight transfer method. Is a proper way of pulling the slack or weight transfer so that you can pull more weights without leaking any power. देखो तुम्हारी डेडलिफ्ट सेटअप वीक नहीं है बट बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड pulled our towards you through lats, but you don't actually know what it actually mean and what it does. That's why you lose tension around your thighs क्योंकि तुम्हें प्रॉपरली पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो. आई एम गिविंग यू सिंपल स्टेप बाय स्टेप डेडलिफ्ट सेटअप just so you can make sure that you are actually doing the right thing. I'm giving this to you so you can actually understand the meaning of transferring the weight or pulling the slack properly so that you don't leak any power. Point number 1, check your feet. Is it kissing the ground or you're actually gripping it? Basically most of you guys don't know how to actually grip the ground. That's why तुम्हारी डेडलिफ्ट में लीक हो रही है पावर और दिस इज द मेन कोर एक्चुअली. मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ. लेट्स से ये तुम्हारी फीट है, ठीक है. डेडलिफ्ट के बाद अप्रोच करते हो तुम फीट को ऐसे फ्लैट रखते हो, ठीक है. यू डोंट एक्चुअली ग्रिप इट, यू आर जस्ट टचिंग द ग्राउंड, दैट्स इट. सो हाउ टू एक्चुअली ग्रिप इट? तो बेसिकली क्या करना है तुम्हें, ये नॉर्मली गया. नाउ आई विल स्प्रेड माई फिंगर्स लाइक दिस. सी ये ऐसे है. आई एम स्प्रेडिंग द फिंगर्स. नाउ व्हाट आई विल डू is that I will create a gap between them. Basically what? ये है. I spread it. Now I will grip it with the fingertips like this. देखो ये जो tips है fingertips, grip it. Okay? Now ये बीच में जो देख रहे हो तुम, बीच में जो गैप आ गई है, इस वजह से टेंशन क्रिएट होती है जिससे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स एंड क्वाड्स, बेसिकली तुम्हारी होल बॉडी इससे कनेक्ट होती है. तो तुम्हें क्या करनी है, एज सुन एज यू अप्रोच द बार, तुम्हें ये फीट को फ्लैट है, spread your fingers in your legs obviously and then grip it with your finger points. क्या बोलते हैं इसको, fingertips. Yeah, make sure you are making the gap. As you can see इधर gap है यहाँ पे छोटी सी, या ये gap. Then you can create an actual full body tension. So this is the first point and the main core point. If you understand the first point, now हम दूसरे point की तरफ बढ़ते हैं, which is hinge. What actually hinge means is that pushing your hips backward while reaching the barbell. Okay, let's say this is my full body and this is the hip area. Okay, if I push it back, look how it's pushing backward, and slowly I will approach the bar with my hands. Okay, while I'm engaging quads, glutes and hamstring, इन तीनों को मेरे को engage करनी है while I'm going down. Look, I am not approaching bar. What I am doing here is that I am hinging. Hinge is one of the main core you have to learn. As soon as you reach the bar, you have to grip it with your squeeze lat, which put us into the third point. तुम्हें समझ आ गया फीट की पोजीशनिंग, तुम्हें समझ आ गई हिंज कैसे करना है. Now it comes to back and hands. इन दोनों की पोजीशनिंग और इनके बारे में तुम्हें क्या पता नहीं है, मैं बताता हूँ. तुम्हें कभी ना कभी स्ट्रेट आर्म पुल डाउन की होगी जो ऐसे होती है जो तुम्हें पता है. सो बेसिक इमेजिन करना तुम स्ट्रेट आर्म पुल आर्म के स्क्वीज पार्ट में हो, ठीक है. लैट्स को स्क्वीज करके रखे हुए लाइक दिस. देखो ये है यहाँ, ये एज यू कैन सी मेरे लैट्स ये पूरे टाइट हो रखे हैं. या वहाँ पे तुम्हें स्क्वीज रखने, बेसिकली अपने लैट्स को स्क्वीज रखने while reaching the barbell. As soon as you reach the bar, imagine your hands as an hook. Basically ये है तुम्हारे hands, ये है barbell. Okay, rather than gripping too hard, just make a hook. अपने हाथ को hook बनाओ and hook it. As you can see, it's rather than gripping hold the barbell, just make a hook here. Now it's too tight. ये ऐसे छूटने नहीं वाला है because तुमने hook बना लिया है. 2 points है जो तुम्हें याद रखने हैं. फर्स्ट, अपने लैट्स को स्क्वीज रखो while doing deadlift. सेकेंड पॉइंट इज हैंड के लिए तुम्हें बारबल को ग्रिप नहीं करना है, तुम्हें बारबल को हुक करना है, हुक में फंसाना है. एज यू नो, rather than gripping the whole barbell tightly, you will just go there, hook the barbell and pull it towards your 90% of your work done here. Now comes the part where most lifters fail to understand. Now here comes the fourth point, the point before the bar starts to move and the point after you set up. This is the part where you should push your glutes towards the barbell rather than just bending your knees.
ये मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है और अभी भी समझा रहा हूँ। देखो, अपने ग्लूट्स को बारबल की तरफ पुश करो। यू हैव सीन सुमो लिफ्टर्स, बार मूव होने से पहले वो अपने ग्लूट्स को बारबल की तरफ पुश करते हैं, सो दैट दे कैन एज मच एज टाइटनेस दे कैन गेट। ओके, तो वो तुम्हें करना है, अपने ग्लूट्स को बारबल की तरफ पुश करना है, सो दैट यू कैन एंगेज ऑल द मसल एट वंस, feet, hamstring, glute, quad, core and lats. Okay, and remember, focus on pulling the barbell, not the weight. While doing all of this, तुम्हें अपने बार को पुल करना है rather than thinking of कि मुझे weight पुल करना है. As soon as you see the weights come up, boom, just stand up. Here comes the last but not the least, fifth point, which is execution. You have heard from every lifter or from every Instagram influencer the term push and pull टेक्निक। ट्रांसफरिंग मेथड का ही ये पिक पार्ट है और ये कैसे होगा मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखो, 60% ऑफ योर पुलिंग विल बी हैपन ड्यूरिंग द स्लैक, 40% हैपेंस आफ्टर द बार स्टार्ट्स मूविंग एंड बूम, you just learn the method of transferring weight, or should I say slack. More importantly, you understand, right? Now if you want me to break down your squat, bench or deadlift in detail, और तुम्हें बताओ कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पे स्लैक लूज कर रहे हो, then DM me on Instagram or you can just comment down below. It's not just that, here's more of it. I just taught you about deadlift slack, but here's more of it. Squat and bench. Yep, you heard me right. स्क्वाट और बेंच पे भी तुम्हें स्लैक लेनी पड़ती है। बेसिकली वेट ट्रांसफर तुम्हें इन तीनों लिफ्ट्स में ही करनी पड़ती है। बहुत से कोचेस तुम्हें ये नहीं सिखाएंगे कि बट आई मिस्टर भीम सिंह दर्जी गोइंग टू टीच यू हाउ टू पुल स्लैक इन बोथ स्क्वाट एंड बेंच। नेक्स्ट वीडियो में स्क्वाट या बेंच की दोनों में से किसी एक की वीडियो बनाऊंगा, ब्रेक डाउन करने वाला कि तुम उस पर वेट ट्रांसफर मेथड कैसे यूज कर सकते हो और तुम्हारी लिफ्ट्स बढ़ सकती है एक्चुअली। नो किडिंग माय फ्रेंड। तुम्हें स्क्वाट की चाहिए या फिर बेंच की, इन दोनों में से किसी एक को नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा। सो मेक श्योर यू कमेंट, एंड जिसको अगर डिटेल में अपनी स्क्वाट, बेंच या डेडलिफ्ट ब्रेक डाउन करनी है, इंस्टाग्राम हैंडल इधर आ रहा है, तुम यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। नाउ रिमेंबर माय फ्रेंड, पावर लिफ्टिंग इज अ वर्ल्ड इटसेल्फ, एंड आई मिस्टर भीम सिंह दर्जी गोइंग टू बी योर टूर गाइड। सी यू नेक्स्ट टाइम।